So, welcome to the Uncommon Talks. Hi, welcome to Uncommon Talks, everyone. And Mr. Nivas. So, Mr. Nivas is a guy leading example who is helping transgender and is involved in the transgender empowerment movement. Mr. Nivas, please tell us about yourself. Thank you, Janendra, for giving this opportunity. My name is Nivas and I'm from Bihar. I have done masters in education from Ajim Premji University, Bangalore. So there is a story behind what I am doing. When I was 7 years old, I was traveling in a train with my parents. And one trans woman came to beg the money in the train, and I saw, and it was new for me because her face was looking like a woman, like a man, and her voice modulation was like a man, but she was wearing a sari. I was just looking to her curiously, and my mother just closed my eyes, and I was forced to be blind at that moment when the trans woman left. Then my mother said that she is a bad person, she is a man, but she wear a sari to beg the money. So don't look at her. From that time, I became stereotyped about transgender. They are bad people. So you can imagine at 7 years old, a child thinking about transgender, they are the bad people. And after 14 years, while doing my master's, I was traveling for a research on education from Bangalore to Uttarakhand. And this time I was alone. And again, I met another transgender. She was begging the money near the Pune in a train. So I stopped her and I asked her, why you are begging money? Why you are not doing some job? Then she just looked on my eyes and then she asked me, what you do? I just said, I'm doing research right now, so I'm going for the research. And then she said, oh, so why you are not doing research on me? Why God made me like this? If God made me like this, then why people are not accepting me as I am? And then she left. This moment was, for me, it was U-turn. At that time, I got my purpose of my life, and from that time, I started doing research. Who is transgender? Why they are begging money? Why? What is their history? What is their philosophy? Politics? Everything I searched, and then finally, I came on this idea of creating an inclusive school for them. That is an eye-opening statement, I guess, for you when she said that, why don't you do research on me? I am also a creation of God. I'm very happy that you found your purpose and that you are helping transgender people, because I've always been curious about them. I always wanted to do a podcast with them, people, helping them, their community, right? Because I'm very curious about how they work, how people treat them. Because my mother has also told me that their blessings are like, they touch you. Their blessings come true in her city near Chandigarh. It's Pinjore basically. So there was a transgender by the name, I guess, Rani or something. I don't remember exactly. She always said that she was very pretty and she always blessed all the kids, and she was very nice, very knowledgeable. I had a both way mind that they are good also, but some of them are faking these days. Some of them are faking just to earn money. But I have personally met a few, two or three, which those two or three people were very sweet. I was traveling somewhere for a trekking, and she came in train in normal her language that Raja क्या कर रहा है? I was like, nothing, हम travel करके वापस जा रहे हैं. And she said कि मेरे को चाय पिलाएगा. And एक्चुअल वो दिसंबर का टाइम था, तो आई वाज लाइक, या श्योर, व्हाई नॉट, आप बैठो हमारे साथ, हम आपको चाय पिला देते हैं. आपको खाना खाना है, चाय पिलाना है, वो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं पैसे वैसे किसी को नहीं देता. तो अगर आपको कभी खाना खाना है, एनीवन हु इज अंडर प्रिविलेज, आई वुड ऑलवेज से कि खाना खिला सकता हूँ, मैं पैसे वैसे कम नहीं दूंगा. तो शी वाज लाइक, आई विल बी हैप्पी अगर आप मुझे एक चाय पिला दो. मैंने कहा दैट इज गुड, बिकॉज मैंने ये भी देखे हैं कुछ लोग जो आपसे मिलते के साथ ही ये कहते हैं कि वी नीड 100 रुपीज, वी नीड 500 रुपीज फ्रॉम यू, बट शी वॉजंट लाइक दैट. उन्होंने बहुत जेन्युइन डिमांड करा, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड शी सैट देयर विद अस एंड शी टॉक टू अस कि अच्छा कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, नॉर्मल चीजें एकदम बस. और उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ा बहुत ऐसे मस्ती वस्ती करा. शी मेस्ड अराउंड विद अस, गेव हर ब्लेसिंग्स एंड ऑल. सो आई हैड बोथ काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस विद मी, बैड एंड some of the good ones also. ये जो 2016 के बाद इनका like they have awarded that other kind of word, because पहले male female होता था ना, right, in sex वाला column always, but recently after 2016 they got right to be considered in the fundamental rights. And before 2014 में they had a lot of cases going on कि इनको fundamental rights में क्या होता है, constitution के हिसाब से क्या है,
मेल है फीमेल है, इन्हें क्या हम्म। देना चाहिए, इनके पास ये फंडामेंटल Yes. राइट्स है कि नहीं है, कि अगर किसी ने इनको मारा है पीटा है तो इनकी कंप्लेन कहाँ लिखी जाएगी. आई गॉट टू नो कि हम्म। 2016 में, विच इज आई थिंक वेरी लेट, बट एटलीस्ट हम्म। आया. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे पटना में कई सारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। 2019 के डेटा के अनुसार अराउंड 2200 ट्रांसजेंडर्स रजिस्टर्ड हुए वोटर लिस्ट। एक पॉजिटिव चेंज है, जो भी प्रोसेस था, बट अभी काफी चेंज आया है। So India is in a transition right now, and there is हाँ। Miss Lakshmi Yes. who has represented India in UN, and Yes. she is very knowledgeable. I have seen her in Kapil Sharma ka show. I have seen her in other reality shows, some TV shows, 2 or 3 times. What else do you do? How do you help them? आपका purpose आपको मिल गया. Then how did you start helping them? 2019, I was in Bangalore, and at that time, I worked with some organizations to understand more about under issues. I worked with Periphery organization as a volunteer to provide the training. So in Periphery, what they do, they train to the transgender youth and give the placement in the company. So I worked there for a month, and then I found that they get placement, they economically they become sustainable, but again in the workplace they are not safe, they feel abuses, they face the violence also. इन सब के बाद मुझे समझ में आया कि क्योंकि उन्हें ऑनरशिप नहीं मिलता है, इस वजह Right. से उनके साथ ये चैलेंजेस फेस होती है। तो अच्छा। व्हाई नॉट टू मेक देम एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो जब तक सोसाइटी में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक इंक्लूसिवनेस नहीं आएगा। द पर्पस ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर इज नॉट जस्ट टू मेक देम इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू टेक देम इन द सोसाइटी एंड टू क्रिएट एन इंक्लूसिव सोसाइटी। तभी Exactly. हमारा पर्पस कंप्लीट होगा। ये चीज मुझे समझ में आया, और फिर हमने प्लान किया कि व्हाई नॉट टू मेक अ टिफिन सेंटर इन बैंगलोर फॉर द आईटी एंड फॉर द चिल्ड्रन, प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन, बिकॉज इन प्राइवेट स्कूल एक वहाँ पे डेली पब्लिक स्कूल में अराउंड 5000 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, उन्हें मिड डे मील नहीं मिलता। जो वहाँ पे कैंटीन होता है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो चाइनीज फूड मिलेंगे। तो व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन, ये मुझे काफी हर्ट करता था, क्योंकि मैं वहाँ स्कूलों में घूमते रहता था बिकॉज ऑफ माई मास्टर्स डिग्री। तो हमने ऐसे प्लान किया कि हम टिफिन सेंटर खोलेंगे उन बच्चों के लिए, और एकदम मिनिमम प्राइस में हम उनको फूड उपलब्ध कराएंगे। सो ट्रांसजेंडर विल टेक द ऑनरशिप एंड दे विल डू एवरीथिंग। आई एम कलकत्ता में पिच किया जा करके फंडिंग एजेंसीज के सामने और उन लोगों के सामने, उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने कहा नो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस नॉट हैपन, बिकॉज हम ट्रांसजेंडर को हम सोसाइटी में ला करके ऐसे खड़ा नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, लेट्स सी। सो आई स्पेंट 1 year टॉकिंग विद द पीपल, बट नो वन वाज एक्सेप्टिंग दिस आइडिया, एंड देन आई फेल्ट दैट हमें सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनाने की जरूरत नहीं, साथ ही साथ हमें ऐसे भी सोसाइटी में काम करना होगा जहाँ पे उनको एजुकेशन मिले, और एक इंक्लूसिव एजुकेशन मिले, और वो भी ट्रांसजेंडर के साथ साथ मेल फीमेल बच्चों के साथ। और मेल फीमेल बच्चों में ट्रांजिशन आने की जरूरत है, उनके अंदर ये वैल्यू इनकलकेट होने की जरूरत है, ताकि वो उसको रिस्पेक्ट कर सके। और वो चीज के साथ फिर हमने प्लान किया, एक हम स्कूल ओपन करते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल ओपन होगा, और उसके साथ साथ हम एक एंटरप्रेन्योरशिप फेलोशिप प्रोग्राम भी चलाएंगे ट्रांसजेंडर यूथ के लिए, जहाँ पे 3 से 5 ट्रांसजेंडर को हम हर साल एंटरप्रेन्योर क्रिएट करेंगे, और वो सोसाइटी में जाकर के ऐसे सोशल इश्यूज पे वो काम करेंगे और उसको सॉल्व करें। जैसे फार्मिंग में ऐसी ऐसी टेक्निक्स जो नेचुरल फार्मिंग को लेकर के आ सकते हैं, वो स्कूल अपना खोल सकते हैं, वो कोई कुछ भी कर सकते हैं जो भी उनके इंटरेस्ट का हो। अभी इस चीज पे काम कर रहा हूँ, और अभी करिकुलम डिजाइन कर रहा हूँ। इसके लिए हमारा कोलैबोरेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी हुआ है, कई सारे कोलैबोरेशन अभी हो रहे हैं। वंडरफुल। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आप बेसिकली हर ट्रांसजेंडर को, मेल फीमेल को और बच्चों को स्पेशली, यू आर ट्राइंग टू इनकनकेट दिस फीलिंग एंड दिस बिहेवियर कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, बिकॉज ये एक्चुअली नॉर्मल है, बट लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसको नॉर्मलाइज करना पड़ रहा है हमें, ऑल्दो ये नेचुरली होना चाहिए, बट आई सपोज नेचुरली हमारे वर्ल्ड में कभी कुछ होता नहीं है, सो समटाइम्स वी हैव टू पुश इट। नॉर्मलाइज होने में काफी टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट यू स्टार्टेड समथिंग गुड।
दैट इज ग्रेट। जैसे ये लोग सिग्नल्स वगैरह पे जो होते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट स्कीम निकाली हुई है ट्रांसजेंडर के लिए। Yes. हाँ, तो वो लोग जॉब Yes. क्यों नहीं करते हैं? इट इज बिकॉज कि उनको जॉब मिलती नहीं है, या फिर वो करना चाहते नहीं है, या फिर उनको वहां पर जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या फिर क्या सीन आता है उसमें? वो क्या इशू है? बिल्कुल सही आपने स्टेट किया इस तीनों पॉइंट को। एक तो है कि सबसे पहले उन्हें बचपन से ये बोला गया कि तुम डिफरेंट हो। जब हम किसी चीज को ये बार बार कहते हैं कि यू आर डिफरेंट, वो अपने आप को अलग फील करने लगते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी जब हम देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि 21 ईयर्स तक अगर कुछ चीजें रिपीट होती रही तो फिर वो बहुत मुश्किल है पूरी लाइफ तक वो निकलना माइंड से। इसलिए हमें बच्चों में इसके साथ काम करने की जरूरत पड़ी कि हम बचपन से अगर काम करना शुरू करेंगे तभी हम उनके माइंडसेट को हम नॉर्मलाइज कर पाएंगे। तो क्या होता है कि जब वहां से जब प्रॉब्लम हो जाता है और 21 ईयर्स के बाद ऐसे यूथ बाहर निकलते हैं, ठीक है, जो इस माइंडसेट के साथ कि मैं अलग हूँ, उसके बाद हमारी सोसाइटी में जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट कौन देता है हमें? वहाँ पे कौन बैठा हुआ है? वहाँ पे मेल और फीमेल एग्जैक्टली, जो कि हमें एक्सेप्ट नहीं करता। ट्रांसजेंडर वहाँ पे जाकर के उनसे वो अपॉर्चुनिटी की डिमांड करने में सबसे पहले तो एक डर है, एक थ्रेट है कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्ड आएगा। दूसरा, थोड़ी हिम्मत करके जाते हैं तो वहाँ पे अब्यूजेज होते हैं, वर्बली उनको अब्यूज किया जाता है, डोंट उनको बोला जाता है। उसके बाद इतनी सारी चीजें होने के बाद फिर इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी जॉब करे। बट फिर भी 0.02% जो ट्रांसजेंडर इंडिया में है वो एम्प्लॉयड हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जॉब कर रहे हैं। बहुत कम नंबर है, 0.02%। बट फिर भी एक होप है ये नंबर। होप के लिए सिर्फ 0 से ऊपर उठना ही काफी होता है। वो धीरे धीरे करके आई होप, आई रियली विश कि बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है फॉर ट्रांसजेंडर्स ये इंक्रीज होके अराउंड 20%, 40% आने वाले टाइम में हो जाए तो बहुत अच्छा है कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो, सब उनको रिस्पेक्ट दें वो जो डिजर्व करते। बिकॉज आई हैव सीन इन सम वीडियोस और मूवी कि बचपन से उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता है, उनके फैमिली वाले उनको धिक्कार देते हैं या फिर उनको सेपरेट कर देते हैं अपने आप से, उनको कहीं और भेज देते हैं, दे डोंट वांट टू कीप देम। वैसे सब लोग कहते हैं कि सबको भगवान ने बनाया है, एवरीथिंग इज गॉड्स क्रिएशन, हम तो पुजारी हैं या फिर हम तो भक्त हैं, ये हैं वो हैं। तो आई डोंट नो व्हाई दे डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग। तुम जानवर को एक्सेप्ट कर लेते हो, वो भी भगवान ने बनाया, वो भी डिफरेंट ही है। वैसे कहा जाता है कि बच्चा तो बच्चा होता है, अपना ही औलाद है, ये है, वी शुड टेक केयर ऑफ देम। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन एंड दे सेपरेट देम एंड दे सेंड देम अवे। वो बहुत डिसहार्टनिंग चीज है दिखने में और सुनने में और सब चीजों में। मेरी समझ से भी खैर बाहर है, पता नहीं क्यों करते हैं। मेरे ख्याल से सबको पालना चाहिए अपने बच्चों को यार। किसी के बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है, किसी को ऑटिज्म होता है, किसी को कोई ढंग से पैदा नहीं हो पाते, कुछ बोन्स में खराबी होती है, तब भी तो पालते हैं। बट ट्रांसजेंडर क्यों नहीं? तो इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रीजन है जिसके वजह से ये हुआ है। बिफोर ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, ट्रांसजेंडर्स वर इन द पावर टू take the decisions for the state development, to change the decisions of the kings. They were collecting the taxes in the Mughal period. They were in golden time. But जैसे ही ब्रिटिशर्स आए और मैकॉले ने एक रूल लेकर के आया और उन्होंने इलीगल बना दिया होमोसेक्सुअलिटी को, जो कि ट्रांसजेंडर्स को और पूरे LGBTQIA++ कम्युनिटी को पीछे ढकेल दिया सोसाइटी में, क्योंकि वो लीगल ही नहीं है। सोसाइटी हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ट्रांसजेंडर्स आर और ये होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट लीगल। वो चीजें हमारे माइंड में, हमारे कल्चर में आ गई। 1947 में हम आजादी तो ले लिए अंग्रेजों से, पर ट्रांसजेंडर्स को आजादी नहीं मिली थी। और फिर आज जाकर के उनको 72 ईयर्स के बाद 2018 में उनको ये जाकर के फिर लीगल हुआ। तो एक बड़ा टाइम लगा और अब जो है फिर और टाइम लगने वाला है ये लीगल होने के बाद। अब लोगों के माइंड में भी ये लीगल हो जाए। कुछ ट्रांसजेंडर, एक गे से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने ऐसे बताया कि क्यों हमें इग्नोर किया जाता है, क्यों हमें हटाया जाता है मेन कम्युनिटी से, ताकि मेल और फीमेल को लगता है ऐसा हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं इससे खतरे में आ जाएगी। क्योंकि एक ट्रांसजेंडर अगर 100 मेल और फीमेल के बीच में खड़ा है तो सबका अटेंशन उनके प्रति रहेगा। ये पता नहीं कितना वैलिड है, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे भी ये काफी पॉइंट लगा कि सच में कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जैसे एक ट्रांसजेंडर अगर किसी पार्टी और फंक्शन में आता है तो सबके अटेंशन उस पर होंगे, फिर बाकी लोगों का अटेंशन खत्म जाए। तो ये भी एक इनसिक्योरिटी होती है। बट सर वो इनसिक्योरिटी आई क्यों है वो हमें जानना जरूरी है ना। वो इनसिक्योरिटी आई गेस इसलिए आई हुई है क्योंकि उनको
डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर आप किसी Yes, पार्टी में yes. शेर ला के खड़ा कर दोगे तो ऑब्वियसली उस पे सारा इंटेंशन हाँ. होगा क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है किसी पार्टी Yes. में। अगर आप इस चीज को नॉर्मलाइज कर Yes. देंगे देन इट विल बी Yes. टोटली नॉर्मल, कोई इनसिक्योरिटी होगी ही नहीं। तो अभी मैं एक क्विकली एक स्टोरी आपको बताता हूँ। तो Why दिल्ली not? में एक 14 इयर्स की ट्रांसजेंडर थी, उनको घर से निकाल दिया गया। मेरा एक फ्रेंड है, वो उसने उसको रेस्क्यू किया और एक स्कूल से बात किया और स्कूल उसको रखने के लिए तैयार हो गए। उनके पेरेंट्स को पता चला कि जो बच्चा है वो उस स्कूल में अभी चला गया और वहां पे पढ़ाई करने वाला है, उस ग्रुप में नहीं गया है ट्रांसजेंडर्स। उनके फैमिली वाले आए, जबरदस्ती उस बच्चे को लेके गए। ले जाकर के उन्होंने उसके साथ क्या किया कोई आइडिया नहीं है। आज तक मेरा फ्रेंड उसको ढूंढते हैं दिल्ली में। ये 1.5 ईयर्स अभी हो चुका है और वो अभी तक नहीं मिली। यू कैन इमेजिन कि किस तरह से कितने वायलेंट हो रहे हैं हमारे यहाँ के पेरेंट्स अपने ही बच्चों के प्रति जो कि ट्रांसजेंडर है। मतलब अगर सेपरेट कर दिया तो तुम्हें क्या मतलब, फिर तुम्हारी लाइफ नहीं है, जो भी है उसको करने दो, फिर तुम्हें क्या मतलब उससे अगर हाँ, तुमने अगर हटा ही कोई दिया। सपोर्ट कर रहा है, यस, कोई सपोर्ट कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, पैसे दे रहा था मेरा दोस्त, फिर भी उनको प्रॉब्लम था कि कहीं ये पढ़ाई कर लिया तो फिर मेरे ऊपर सवाल ना खड़ा करे बड़े होकर के। इसका क्या हुआ कोई पता नहीं। ऐसे ही एक स्टोरी मुंबई से आया था। 7 इयर्स की एक ट्रांसजेंडर बच्ची थी, उसके पिताजी का डेथ हो गया था, काफी प्रॉब्लम हुआ। उसकी माँ का डेथ हो गया और 8 इयर्स के एज में। जैसे ही उनकी माँ का डेथ हुआ उस बच्ची को घर से निकाल दिया गया। यू कैन इमेजिन कि 8 साल की एक बच्ची को घर से निकाला जाता, कहाँ जाए क्या करे। इतना क्यों, आई डोंट नो, क्या ही करना चाहते हैं, इतने क्रूअल क्यों हो रहे हैं लोग आजकल। इतना ज्यादा पढ़ लिख के भी इतना क्रूअलिटी आ रही है उनमें, और आई गेस पढ़ने लिखने से ज्यादा डिफरेंशिएट हो रहे हैं, अपने नेचुरल बिहेवियर को भूलते जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो ट्रांसजेंडर है, जो ट्रांसजेंडर की हेल्प कर सकते हैं, वो कितनी परसेंटेज है उनकी, या फिर कितने लोग हैं जिनको आप जानते हो? मैं जो जानता हूँ वो बहुत कम है। ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर मेरे नेटवर्क में अभी तक एक भी नहीं है। बट अच्छा। मैं ऐसे कंसल्टेंट को जानता हूँ जो गोवा में एक ट्रांसजेंडर है जिनको घर से निकाला गया था 14 इयर्स के एज में ही। फिर एक ग्रुप में गई, वहां पे उनसे बोला गया बेगिंग करने और सेक्स वर्क करने। फिर उसको छोड़ करके वहां से भागी, वहां से किसी तरह। और फिर जाके उन्होंने अभी मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में और वो कंसल्टेंट है गवर्नमेंट में। मैं उनके टच में हूँ। उसी तरह यूपी की जो है सो ट्रांसजेंडर है वो पुणे में काम करती हैं एक एमएनसीज में। एक महाराष्ट्र की हैं, वो बैंगलोर में काम करती है। तो ये सब जो मैं जिनका नाम बता रहा हूँ ये सब काफी बड़े पोस्ट पे हैं और ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी नटराजन है जो कि जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है डांसिंग में, और वो तमिलनाडु से हैं और वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर भी हैं, उन्होंने पीएचडी किया है। और अभी 1 वीक पहले उन्हें अपॉइंट किया गया है तमिलनाडु स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर के रूप में। और उनका भी मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मैसेज आया है और वो सी वांटेड टू कनेक्ट मी एंड सी wanted to help me in my project. आई होप मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू और वीडियो के थ्रू बाकी लोग भी जान पाए कि क्या क्या होता है। दिल्ली में भी मैं बहुत देखता हूँ, अराउंड पीरागढ़ी, पश्चिम विहार, देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसजेंडर्स जो बेगिंग में है, एंड बेगर इंडस्ट्री अपने आप में ही काफी बड़ी है। मैं कुछ डेटा बताता हूँ आपको, उसके sure. बाद आपको समझ में आएगा। सत्यमेव जयते में सेशन था, एपिसोड था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे। इसमें ये बताया गया था कि हर एक सेकंड बच्चों का रेप होता है जब वो बहुत छोटे एज में होते हैं। सोचिए, मेल और फीमेल दोनों का रेप होता है। मेल बच्चों का ज्यादा रेप होता है फीमेल से भी। आप सोच सकते हैं जब मेल और फीमेल का रेप होता है तो ट्रांस बच्चों का कितना रेप होता हो। इसी वजह से मैं एक लाइन बोलता हूँ, ट्रांसजेंडर एक ऐसे लोग हैं जिनका जन्म जो होता है ना वो रेप के साथ होता है और उनका डेथ भी रेप के साथ होता है। वो इसलिए रेप के साथ डेथ होता है, उनको इतना सेक्सुअली वो अब्यूज होते हैं, इतना सेक्सुअल हरासमेंट होता है उनका कि वो HIV एड्स से पीड़ित हो जाते हैं। और HIV एड्स से ज्यादातर ट्रांसजेंडर का डेथ होता है। मेल्स का ज्यादा रेप होता है? यस, ऑफ कोर्स होता है। तो डेटा जो बताता है, और इवन मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने देखा है अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को, मेल के साथ भी रेप होता है जब वो बच्चे होते हैं। आई हैव रिसेंटली हर्ड ही वाज 17 जिनका रेप हुआ था, कोई लड़का था यूपी, आई गेस यूपी या दिल्ली में कहीं पे। सो दैट वाज आल्सो शॉकिंग। लोगों को लगता है सिर्फ गर्ल्स का होता है, बट मेल्स को भी हरास करा जाता है काफी ways में। मेल के द्वारा होता है रेप, ये डेटा ज्यादा है। जो इनकी ट्रैफिकिंग होती है, फिर जो सेक्स ट्रैफिक में चले जाते हैं, फिर रेड लाइट स्ट्रीट वगैरह की तरफ चले जाते हैं, कोई हेल्प कर रहा है इनको कोई निकालने में, या फिर इनको कैसे निकाला जाए, इनकी हेल्प कैसे करी जाए? फर्स्ट थिंग तो मैं कहूंगा कि जब जीने की बात आती है तो एक मेल और फीमेल के लिए पर्पस ऑफ लिविंग होता है कि वो जो वेल्थ जनरेट करेंगे, जो वो अर्न करेंगे,
उस वेल्थ के साथ उसके बच्चे आगे लेके जाएं। ये एक बड़ा पर्पस होता है आज की सोसाइटी में। यू कैन इमेजिन अबाउट अ पर्सन जिसका कि ना कोई वजूद है, ना कोई फैमिली है, बैकग्राउंड फैमिली, कहाँ से वो आए, और ना ही उनके कोई बच्चे हैं जो उनके कल्चर, उनके आइडियाज, उनके नाम को आगे लेके जा पाए। फिर उनके लिए तो कोई पर्पस ही नहीं रहेगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि कैसे वो बाहर आए और कैसे मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं तो अभी कुछ भी हेल्प नहीं कर पा। आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। जो ट्रैप में घुस गए हैं उनसे उनको निकालना बाहर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के बहुत सारे कल्चर्स हैं। हिजरा एक कल्चर है, यूनूच एक कल्चर है, अराबन एक कल्चर है जो कि तमिलनाडु का है। तो ऐसे बहुत सारे कल्चर्स हैं, और उस कल्चर्स में गुरु हैं जो उसको होल्ड करते हैं। जैसे हिजरा कल्चर में जो किन्नर, वहां पे जाने के बाद फिर उनके लिए निकलना मुश्किल होता है। उनके अपने कल्चर हैं, उनके अपने तौर तरीके हैं, और उसमें ये बेगिंग करना या फिर डांस करना जाके शादी में, या फिर ब्लेसिंग करना, या फिर सेक्स वर्कर करना, ये नॉर्मल होता है। और हम उस कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि हम उनसे फाइट नहीं करना चाहते। हमारा पर्पस क्लियर है कि हम ट्रांसजेंडर जो बच्चे हैं, जिनको भी घर से निकाला जा रहा है, जिनको कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, हम उनको पढ़ाएं। हम उनके साथ साथ मेल फीमेल को भी पढ़ाएं, और उनके अंदर जो है ये वैल्यू इनकलकेट करें। और ये एक मॉडल स्कूल की तरह होगा जो कि पूरे इंडिया में सबके लिए इंस्पिरेशन होगा। और फिर ऐसे स्कूल्स के लिए हम दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करेंगे कि आप भी ऐसे स्कूल्स ओपन करो। या फिर इफ यू आर रनिंग अ स्कूल, then please create a culture of inclusivity there। इससे जो है सो हम चेंज देखते हैं। हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म शायद हम नहीं कर पाएंगे, और हम सब कुछ तो नहीं कर सकते। आदित्य नाम का एक लड़का है जो कि आईटी मैनेजर है दिल्ली में, उससे हमारी बात हुई है। और जो एडल्ट ट्रांसजेंडर है जो ऐसी चीजों से निकल करके कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है कि वो ट्रेन करेगा उनको, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग दे करके फिर उनको जैसे जॉब दिलाएगा। जैसे एक्सेंचर हो गई और ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे वो बात कर रहा है, और फिर मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। इसे ट्रांसजेंडर जो चेंज होना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं ऐसे जॉब से, ऐसे काम से, तो मैं उसको कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा हूँ। दैट इज ग्रेट। इन्होंने भी देखा है, जैसे मैंने स्थिति देखा ट्रांसजेंडर का, उसको भी समझ में आया कि इनकी स्थिति बहुत खराब है, एंड ही इज रियली मोटिवेटेड टू वर्क फॉर ट्रांसजेंडर। ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और होमोसेक्सुअल ये डिफरेंट है, सेम है, ये क्या सीन है? इसमें बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं मुझे उतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। मैं अच्छा। बहुत कोशिश किया तो हर बार मुझे एक नई चीजें मिलती है जानकारी। तो जितने भी ट्रांसजेंडर से आप बात करेंगे ना, हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस है, और इसमें बताते हैं कि टोटल मोर देन 70 जेंडर्स जो LGBTQIA प्लस प्लस जो साइन है, प्लस का मतलब है कि सिर्फ LGBTQIA तक ही नहीं है, उसके अलावा भी 72 अलग जेंडर्स हैं। इतना ये डाइवर्स है कि इस चीज को समझ पाना बहुत मुश्किल है। मुझे जो जितना पता है बहुत बेसिक चीजें, और मुझे लगता है कि इस बेसिक से भी अगर काम शुरू करे तो फिर बहुत है। सो आई गेस ये चीजें मैं किसी डॉक्टर से जब पॉडकास्ट करूंगा तो आई विल आस्क हर और हिम कि इसमें क्या रहता है, और कैन दे गिव बर्थ और नॉट, कैन दे लिव अ नॉर्मल लाइफ, क्या उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं या जब व्हेन दे हिट प्यूबर्टी, उनमें क्या हमारे जैसे नॉर्मल चेंजेस आते हैं या फिर थोड़े डिफरेंट होते हैं? बिकॉज उनका बायोलॉजिकली भी डिफरेंट होता है, फिजिकली भी डिफरेंट होता है, बहुत कुछ चीजें मुझे पता है। जैसे ट्रांस मैन जो होते हैं उनका पीरियड्स होता है। अच्छा। और जेनेटिकली वो फीमेल होते हैं, सेक्स उनका फीमेल होता है, और वो फील करते हैं एज ए मेल। जब वो प्यूबर्टी में आते हैं तो उनका पीरियड्स होता है, बट दे आर ट्रांस मैन। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्कूल के बाद क्या, जो हमारी पुरानी जनरेशन है, जो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं, आप उनको कैसे एजुकेट करते हो इस चीज के बारे में, और कैसे आप उनको इंस्पायर कर सकते हो या फिर उनमें चेंजेस लेके आ सकते हो? इसके लिए मैंने एक रिसर्च किया था 2019 में, और उस रिसर्च में ये निकल के आया कि 93% पीपल डोंट नो व्हाट इज ट्रांसजेंडर। दे हैव सीन द ट्रांसजेंडर but they don't know by concept what is transgender and how it is different from male and female। उसमें से 80% लोगों ने ये कहा कि मुझे इनके बारे में जानना है कि ट्रांसजेंडर होते कौन है। जो 7% लोगों ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ ट्रांसजेंडर कौन है, क्या है। दो 7% लोगों ने कहा कि मैंने ट्रांसजेंडर के बारे में, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे एक वर्कशॉप में मैं जाना, मैं उनके बारे में पढ़ा हूँ, मैं उनके बारे में मैंने रिसर्च किया क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी उनके बारे में जानने की। उसके बाद उनका ये माइंडसेट चेंज हुआ, एंड फाइनली दे बिकम अवेयर अबाउट ट्रांसजेंडर एंड दे रिस्पेक्ट देम। सो वहां से ये निकल के आया कि इन लोगों को पता ही नहीं है हमें कि ट्रांसजेंडर होते क्या है।
क्योंकि जो मैंने अपनी स्टोरी बताई, जब 7 years ओल्ड जब मैं था, तो मेरी माँ ने मेरा आंख बंद कर दिया। ज्यादातर ऐसी स्टोरीज ही मिली है ट्रांसजेंडर के बारे में जो ये बताता है कि दे आर बैड पीपल। और फिर मैंने रिसर्च किया कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्सन, तो फिर हमें पता चला कि सबसे जो मेन और सबसे फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एकेडमिक्स है। एकेडमिक्स के जितने भी बुक्स और जितनी भी चीजें हैं, मटेरियल्स, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डेवलप की हुई है, उसमें एक वर्ड भी ट्रांसजेंडर के बारे में मेंशन नहीं है। इफ यू विल चेक क्लास 1 से लेकर के 12 तक। जहां तक मुझे याद है मैंने नहीं पढ़ा, मैंने Yes. अलग से ही गूगल करके पढ़ा है कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। ट्रांसजेंडर बेसिकली, लेट मी एक्सप्लेन टू ऑडियंस जितना मुझे समझ आया आज तक। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन होता है माइंड में, मोस्टली वो जो उनका एक्चुअल सेक्स होता है एट बर्थ, वो उससे डिफरेंट फील करते हैं। अगर कोई Yes. बर्थ में मेल पैदा हुआ है बट उसे फील हमेशा होगा एज अ वुमेन, तो उसका जो Yes. इंटरनल साइकोलॉजी या फिर आप केमिकल कह लो या हार्मोनल कह लो, वो उसके एज अ वुमेन होते हैं, नॉट एज अ मैन। तो वो Yes. एज अ वुमेन फील करेगा चाहे वो एज अ मैन पैदा हुआ हो। और ट्रांससेक्सुअल वो लोग होते हैं जिनका सेक्स ऑपरेशन या फिर किसी फिजिकल चेंज से होकर गुजरते हैं, तो वो प्रॉपर उस जेंडर में आ जाते हैं कि वो मेल है या फीमेल हो जाता है, तो वो होते हैं ट्रांससेक्सुअल, Yes. जिन्होंने अपना सेक्स चेंज करवाया। इसके बाद हमें समझ में आया कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। दूसरा सोर्स ऑफ मीडिया है। मीडिया में जो अगर मूवीज देखे तो गिने चुने मूवीज या किसी चीज में छोटा मोटा रोल मिला हुआ है, एक दो मूवीज जो उन पे फोकस किया गया। इसके बाद देखें तो मैगजीन, न्यूज़पेपर और ये सारी न्यूज मीडिया, कहीं भी कुछ भी नहीं। ट्रांसजेंडर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने बम्बई फ्रेंड्स करके एक मैगजीन स्टार्ट किया था जो कि बंद हो गया। कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं। मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 में अभी ऐड कराने की कोशिश किया था कि किसी तरह से बुक्स में उनके बारे में लाया जाए, वो कर नहीं पाया क्योंकि मैं उस टाइम मेरा मास्टर्स का फर्स्ट ईयर था। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो डालना चाहते हैं मंथली मैगजीन, जो कि हर एक स्कूलों में, हर एक वर्क प्लेस में, हर जगह ये हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो, और लाखों की संख्या में, ताकि हर जगह जब ये जाएगा और उसमें जो मैगजीन होगा उसमें हम ट्रांसजेंडर की अच्छी स्टोरीज को हम उसमें पब्लिश करेंगे, जहाँ पे ट्रांसजेंडर ने क्या अच्छा काम किया या किसी मेल या फीमेल ने अच्छा काम किया ट्रांसजेंडर के लिए, तो वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड होगी। वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा स्कूल के लिए भी, हर एक गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी, वहाँ के पे बच्चों के लिए बनेगा, और इस तरह से हम लार्ज लेवल पे इम्पैक्ट को देख रहे हैं। एंड आई होप यू गेट सक्सेस इन योर एंडेवर्स एंड आप जल्द से जल्द इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। ट्रांसजेंडर का इन सोसाइटी में होना, इन स्कूल्स में होना, सबके बीच होना बहुत नॉर्मलाइज हो जाए, उनको डिफरेंशिएट ना करा जाए, उनको डिफरेंट नजरों से ना देखा जाए। आई रियली विश कि ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाए और उनको भी रिस्पेक्ट मिले, उनको भी नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए वो मौका दिया जाए और हमारे बीच में रहे, और हमें तब भी ब्लेसिंग्स दे, हमारे साथ तब भी हंस खेलें और एंजॉय करें अपनी लाइफ, बिकॉज वो भी ह्यूमंस हैं और they deserve better, a lot better. And I would really like to thank Mr. Nivas for coming on the podcast and talking to Uncommon Talks about such an uncommon topic and such uncommon things you are doing for them. That is truly great. I really thank you. With this, we end the podcast. Thank you so much. Thank you so much, Janand, for this giving this opportunity, and because transgenders voice never heard from the people, so it is great to you have given the opportunity to share the voice, my voice, about the Yes, sir. transgender in Sir, this it's an community. honor for me. Thank you so much. Thank you.